जब पेरेंट हमारे पास आता है वो ये हमसे पूछता है कि मेरा बच्चा कब बोलेगा। Could you tell us what exactly is your practice? सारा कुछ सुनना जो है वो ब्रेन लेवल पर होता है। कान सिर्फ आवाज जाने के लिए बने, उसमें सुनना कुछ नहीं होता। Is early intervention only limited to children with diagnosed disabilities? नाउ इट इज द अल्फा जनरेशन। हर टिपिकल डेवलपिंग चाइल्ड के साथ भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है जितना एक स्पेशल नीड के साथ, क्योंकि इन बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सो द अर्ली प्राइम टाइम फॉर अ ब्रेन डेवलपमेंट इज 0 to 5 years। So what is the most rewarding part of your day as a therapist? हमें हमारे बच्चों में ये स्किल्स को डेवलप करना है कि कल को अपनी नीड्स को वो खुद जाकर कम्युनिकेट कर सकें। हर जगह पेरेंट नहीं जा सकते। What is one strategy that you've used to solve this issue? Auditory verbal therapy is a family-based approach where the focus is on developing spoken language communication. तो आपने कुछ पैटर्न्स नोटिस करे होंगे उनके, चाहे थिंकिंग हो या बिहेवियर हो या कुछ प्री कंसीव नोशन हो उनका, तो वो पैटर्न्स क्या हैं और आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? हर दिन कीमती है, तो जितनी जल्दी बच्चे में डायग्नोसिस आप कर पाओगे तभी ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। One quality every parent of a disabled child should remember throughout their journey. There is no better teacher or a therapist than a parent. Hello everyone, and welcome back to a very special episode of To the Abled Eye podcast where the roles are reversed now. I'm back after a year and a half. My name is Ananya Nakra, and today the roles, as I said, the roles are reversed, and we have Dr. Ritu Nakra, my mother, who is going to be a very special guest speaker for today's podcast. So everyone say hello to Dr. Ritu. Hello, thank you. It's pretty strange and surreal to be on this side. On the opposite side this time. Yes. Well, it's going to be a very interesting podcast because we have a lot of interesting questions for you, both technical, both personal, and we basically want to dive deep into your brain and help people who watch the podcast. Thank you. So let's give it a very strong start. Could you please tell our audience what your formal education and designation is? Hello everyone. My name is Ritu Nakra and I am a bachelor's in special education and listening and spoken language specialist, certified auditory verbal therapist. This certification is given by AG Bell based in US. And I have been working with children with hearing loss and other special need children from last 17 years from Hear Me Speak. Oh wow, that is a very long time to be in the field, and you were a parent of a hearing impaired child as well, right? That's where your whole journey started, going into education and setting up your own center, right? Yes, absolutely. So for listeners who may not be familiar, your entire practice is based on auditory verbal therapy. Now, what exactly is auditory verbal therapy? And, a lot of people already know about the existence of speech therapy or sign language for specifically the hearing impaired community. So, could you tell us what exactly is your practice in auditory verbal therapy? So, auditory verbal therapy is a family-based approach where the focus is on developing स्पोकन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम बच्चों की जो भी सुनने की क्षमता है, अगर जैसे बच्चे सुन नहीं पाते उनको हियरिंग एड लगा के या कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के, डिपेंडिंग अपॉन उनका किस टाइप का हियरिंग लॉस है, हम उनको सुनने से लेके बोलने तक की जर्नी की जो ट्रेनिंग है, जिसमें कि एक फैमिली, अब मैं खाली मदर या फादर नहीं बोलूँगी, फैमिली बोलूँगी, उनको एज अ पार्टनर बनाकर हम बच्चों को, हमारा एम ये होता है कि हर बच्चा अच्छे से सुने, बोले और फाइनली मेन स्ट्रीम स्कूल जाकर फॉर्मल एजुकेशन ले सके। So it is a combination of focusing on listening and speech at the same time, using the family as a partner instead of the traditional way of focusing on speaking
Yes, and a relationship between maybe the therapist or audiologist and the child. correct, Right. correct. So then that means you must have dealt with a lot of parents throughout your journey, because your focus is on using the family as a support system, as a instructor for the child. So you must have dealt with a lot of parents in 17 years now. Absolutely. Absolutely. I think more than, I would say, m- more than 1,000 families in Wow. all these years. और हर एक जर्नी दूसरे से डिफरेंट रही है. Hmm. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट. सबके लॉजिस्टिक्स अलग होते हैं, सबके सोशल सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, और उसी के बेसिस पे हम जो बच्चे के जो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स होता है, दैट इज़ वाई ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इज़ नॉट कि एक हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे दिया कि उसको फॉलो किया जाए. इट इज़ वेरी मच इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्मल प्लान, जिसमें कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं. Right. तो एवीटी में हम सिर्फ स्पीच या लैंग्वेज पे काम नहीं करते. हमारे 5 मेन डोमेन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ लिसनिंग, ऑडिशन जिसको हम बोलते हैं. दूसरा लैंग्वेज. लैंग्वेज के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं. रिसेप्टिव लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो बच्चा समझ सकता है. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो बच्चा समझकर बोलता है. देन स्पीच, method of speaking and communicating. Then cognition, cognitive abilities, social communication is also a very important part of any AVT program. So इन सारे डोमेन्स में हम पेरेंट को एज अ पार्टनर बनाकर बच्चे के साथ, there are 10 principles of AVT which we follow, जिसमें 6 of these principles are based on guidance and coaching of families. So जब भी हमारे पास एक फैमिली आती है, हम उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बच्चे के प्लान बनाकर बच्चे के साथ काम करते हैं. Hmm. हमारे थेरेपी रूम में थेरेपिस्ट के साथ बच्चा, बच्चे के साथ फैमिली मेंबर्स, चाहे वो फादर आ रहा है या मदर आ रहा है, जो प्राइमरी केयर गिवर हो, यानी कि जो बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता हो, उसमें हम वो पूरा प्लान बनाकर बच्चे के साथ काम करते हैं. और ये अप्रोच जो है एक स्पीच थेरेपी से बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि AVT इज़ नॉट स्पीच थेरेपी. स्पीच थेरेपी का मतलब होता है कि बच्चे में स्पीच है और हम उसकी करेक्शंस कर रहे हैं. उसके लिए आप बच्चे के साथ बैठो और बच्चे के साथ स्पीच की एक्सरसाइज कराओ, जो कि एक फॉर्मल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करता है. लेकिन AVT में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जिसमें स्पीच एक पार्ट है उस पूरे प्लान का. या तो आपने बहुत सारे पैटर्न्स नोटिस करे होंगे पेरेंट्स के साथ, जब आप, क्योंकि आप जब इंडिविजुअलाइज प्लान्स बना रहे हो और आप जैसे कह रहे हो कि यू मेट ओवर 1,000 फैमिलीज, आपने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए होंगे पेरेंट्स के साथ, या जो भी फैमिली मेम्बर्स आते होंगे उनके साथ आपने कुछ पैटर्न्स नोटिस करे होंगे उनके, चाहे थिंकिंग हो या बिहेवियर हो या कुछ प्री कंसीव नोशन हो उनका. तो वो पैटर्न्स क्या हैं और आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? सो आई थिंक पैटर्न्स में बात करें तो सबसे पहले जब पेरेंट हमारे पास आता है, वो ये हमसे पूछता है कि मेरा बच्चा कब बोलेगा. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा. चाहे वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरा बच्चा बोले. सो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब जनरल पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को पता होना चाहिए कि जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बोलते हैं. अगर हम एक हिंदी एनरिच्ड एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो हिंदी बोलना सीखेगा. अगर गुजराती फैमिली में तो गुजराती बोलेगा. सो जिस लैंग्वेज में बच्चा पल बढ़ रहा है, जो उसकी मदर लैंग्वेज है, जैसा वो सुन रहा है वैसा ही वो बोलेगा. तो जब बच्चा सुन ही नहीं रहा तो वो बोलना कैसे शुरू कर सकता है? Right. नंबर 1.
सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा सुनना कब शुरू होता है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो हम कब सुनना शुरू करते हैं? हम ऑलरेडी सुनना शुरू कर चुके होते हैं मदर की वूम में, सो Yes. अराउंड 20 वीक्स, एब्सोल्युटली राइट? सो ये इंफॉर्मेशन सब पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है, सो जो लेटेस्ट रिसर्च के अगर मैं कुछ पॉइंट्स दूं, जब बच्चा पैदा होता है वो ऑलरेडी 20 हफ्ते 20 वीक्स मदर के वूम में सुन के पैदा होता है। राइट, इसीलिए अभिमन्यु की फेमस महाभारत की कथा है कि वो पूरा चक्रव्यूह रचना सुन के बाहर आया था, जो उसकी ऑडिटरी मेमोरी में रहा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब बच्चा पैदा होता है उसकी लिसनिंग एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है कि वो अपनी माँ की आवाज़ बाकी आने वाले आसपास के लोगों से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। यानी कि इतना एक्सपीरियंस बच्चे को होता है कि ये मेरी माँ की आवाज़ है, ये मेरी माँ की आवाज़ नहीं है। नंबर 3, वो इतने एक्सपीरियंस से पैदा होता है कि वो अपनी होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज और जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ओके, यानी कि अगर वो हिंदी के गाने, हिंदी की चीज़ें आपस, हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा सुना है उसने, तो उसको पता होगा कि अब जो कोई मेरे से बात कर रहा है वो हिंदी नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेज है। अच्छा, यानी कि लैंग्वेज का भी एक्सपीरियंस लेके वो पैदा होता है। ओके, अब जब बच्चा, जो स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, वो जिस दिन उसको प्रॉपरली फिटेड हियरिंग एड लगाए जाते हैं, उस दिन उसका डे 1 होता है सुनने का। तो जब डे 1 हुआ तो जो टिपिकल हियरिंग बच्चा है वो ऑलरेडी इतना सुन के पैदा हुआ है, राइट, तब वो 1 साल पे बोलना शुरू करता है, मम्मा, पापा, दादा, आओ। तो 12 महीने और 4 महीने 16 मंथ्स के सुनने के बाद बच्चे का बोलना शुरू होता है। तो जब पेरेंट हमसे बोलता है कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, तो हम यही एक्सप्लेन करते हैं कि जब उसके सुनने का एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग बनेगा तब ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कुछ बोलेगा। राइट, सो ये सबसे बड़ी कॉमन चीज़ जो है, जो चैलेंज हम फेस करते हैं, और फिर पेरेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि पहले काम करना है, सुनने पे काम करना है, उसकी ऑडिटरी ब्रेन को स्टिमुलेट करना है। सारा कुछ सुनना जो है वो ब्रेन लेवल पर होता है। जैसे डॉक्टर कैरल फ्लेक्सर ने कहा है कि ईयर्स आर द डोरवे इन टू द साउंड। कान सिर्फ आवाज़ जाने के लिए बने, उसमें सुनना कुछ नहीं होता। लेकिन सारा सुनने का प्रोसेस हमारे ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर होता है, जहाँ पर हमारा ब्रेन ये करता है कि मैंने क्या सुना, ये क्या इंफॉर्मेशन है और इसका क्या मतलब होगा। इसीलिए क्लास में जब टीचर बोलती है लिसन टू मी केयरफुली, सो शी इज सेइंग कि सुनना इज हियरिंग, लिसनिंग इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर हियरिंग। राइट, तो मैम ये बोल रही हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, प्रोसेस इट, राइट। सो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को समझाने में, ये कॉमन चीज़ें जो हमें बहुत अच्छे से पेरेंट को समझानी पड़ती हैं, एंड देन वी सेट द स्टेज। So, if the child is already has a hearing loss deficit, is there a correct age that you would say that they should approach you for auditory verbal therapy? I would say the day the child is diagnosed, please reach out to your therapist, reach out to an ENT specialist, pediatrician, अपने स्पेशलिस्ट से बात करिए, बिकॉज एवरी डे काउंट्स। यहाँ पर मैं सबसे अच्छा रेफरेंस देना चाहूँगी, हार्ट एंड रिस्ले की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च आई थी, जिसमें उन्होंने बोला अ टिपिकल बच्चा, नॉर्मल टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड, जब ये बच्चा 4 साल का होता है तो इसकी वोकैबुलरी में लिसनिंग एक्सपीरियंस 40 मिलियन वर्ड्स का हो चुका होता है। सो इतने लिसनिंग एक्सपीरियंस के बाद ही बच्चे की अच्छी लैंग्वेज बन सकती है। राइट, तो अगर आप एक भी दिन मिस कर रहे हो, आप उसके बहुत सारे न्यूरल डेवलपमेंटल पाथ को
रोक रहे हो एज अ Right. पेरेंट, आई वुड से. Hmm. इसीलिए डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे. पर उन पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स को डर लगता है कि ये टेक्नोलॉजी नया है और उन्होंने इतने केस स्टडीज़ नहीं देखे, इतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो वेट करते हैं. मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि वो वेट करते हैं जब तक आपस फैमिली में बात हो गई कि चलो बच्चे की थेरेपी करानी है, कॉक्लियर इम्प्लांट कराना है. So that decision making process or that decision making time, do you think that parents should take their focus away from that and just trust and believe in their therapist and the technology and not waste time at all? Or do you think that process is also important कि आप decide करो और सोचो और जितना time ले रहे हो ले लो? वेरी गुड क्वेश्चन. आई वुड से कि जिस दिन बच्चा डायग्नोस हुआ है और ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए इसको कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है, आप अपना रिसर्च वर्क ज़रूर रखिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन है किसी भी पेरेंट के लिए बच्चे की सर्जरी करवाना. हाउएवर, अपनी इस रिसर्च में बच्चे का टाइम मत खराब करिए. तो उस टाइम में बच्चे को हम हियरिंग एड, चाहे आजकल जितने भी अच्छे क्लिनिक्स हैं, जैसे हम लोग भी हैं, जब हमें लगता है कि पेरेंट रेडी नहीं है तो हम उनको लोनर हियरिंग एड्स दे देते हैं बच्चे को पहनाने के लिए, Okay. कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा. आप हियरिंग एड लगाकर एटलीस्ट ऑडिटरी ब्रेन का स्टिमुलेशन शुरू कर दीजिए, Right. क्योंकि कुछ ना जाने से थोड़ा बहुत भी जाना अगर शुरू होगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हियरिंग एड से इफ़ेक्टिव नहीं है. ऐसा नहीं है, ये मिथ है. 90% ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव रेजिडुअल हेयरिंग. चाहे वो स्पीच फ्रीक्वेंसीज को ना सुन पाए, लेकिन उनको इतना गेन ज़रूर मिल जाता है हियरिंग एड से कि साउंड अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है. Right. क्यों मैंने कुछ सुना, ये दरवाजे की बेल घंटी है, ये मंदिर की घंटी है, ये कार का बीप बीप है, अरे ये प्रेशर कुकर की सीटी है. सो छोटी छोटी एनवायरमेंटल साउंड्स में भी अगर अवेयरनेस शुरू हो जाए तो वो जो बच्चे की लिसनिंग एक्सपीरियंस का जो स्ट्रगल बाद में बढ़ जाएगा वो कम हो जाता है. Right. और बिल्कुल मिलिए, अलग अलग प्रोफेशनल से ओपिनियन लीजिए, अच्छे सर्जन को ढूंढिए, एक्सपीरियंस सर्जन को आई वुड से. और ये सारा 20% है, लेकिन 80% इज़ थेरेपी, कि आप बच्चे के साथ रोज़ थेरेपिस्ट के कोलैबोरेशन में कितना काम कर रहे हैं. सो सर्जरी, अच्छी ऑडियोलॉजिकल फिटिंग्स, चाहे वो हेयरिंग एड की हो या कॉक्लियर इम्प्लांट की हो, उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है. एंड देन इज द थेरेपी. सो एवरीथिंग, इट्स अ टीम वर्क. Teamwork. Right. एज अ प्रोफेशनल हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं एवीटी थेरेपिस्ट हूँ तो आई कैन मेक द चाइल्ड स्पीक. नो. अच्छी सर्जरी होना, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट, अच्छी मैपिंग होना, एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेशन, ये सारे एक टीम की तरह काम करते हैं. तब हम अल्टीमेटली बच्चे में अच्छा सक्सेस ला सकते Outcome ला सकते हो. हैं. Right. यस. So you've talked about early intervention basically. So is early intervention only limited to children with diagnosed disabilities? गुड क्वेश्चन. आज का जो टाइम चल रहा है जिसमें हम बोलते हैं कि नाउ इट इज़ द अल्फा जनरेशन, Gen alpha. जेन अल्फा. सो जेन अल्फा के साथ काम करना ही अर्ली इंटरवेंशन, मतलब कि हर टिपिकल डेवलपिंग चाइल्ड के साथ भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है जितना एक स्पेशल नीड के साथ, क्योंकि इन बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. सो द अर्ली प्राइम टाइम फॉर अ ब्रेन डेवलपमेंट इज़ 0 to 5 year. 5 years. चाहे वो स्पेशल नीड हो, चाहे स्पेशल नीड ना हो. लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, तो ये जनरेशन के लिए आने वाला टाइम बहुत टफ हो जाएगा. Right. As they say in the Gen Z slang, the generation is cooked if you. या इफ जेन जी इज कुक्ड, आई डोंट नो अल्फा का क्या हाल होगा. सो
Every parents need to be very mindful about parenting now, क्योंकि पेरेंट्स के पास कम टाइम है, दे ऑल आर वर्किंग, लेकिन ये मत भूलिए कि लॉन्ग टर्म में आप किसके लिए काम कर रहे हैं, जो इतना पैसा कमाया जा रहा है किसके लिए कमाया जा रहा है. Right. अगर वो 0 to 5 ईयर आपने बच्चे के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में, आई विल नॉट से IQ डेवलपमेंट, EQ डेवलपमेंट, अगर वो ही नहीं है तो फिर वो बाद में पैसा भी किस काम का ना. Right. Very well said. Very well said. Okay, so now I have a very fun section of the podcast to introduce, myth or fact, changing the narrative, where I will ask you whether I'll give you a few statements and I will ask you whether it is a myth or it is a fact. If it is not a myth, please feel free to go ahead and bust it. If it is a myth, we find out. Okay. First thing. So, if a child is not speaking by a certain age, it is already too late. No, it's a myth, because again I will go on the brain development. Brain is always ready to learn and experience more things. If we at whatever, it may delay the process because he's past that age, but we can't say that there is no chance of developing speech. So more time may require, but yes, because of the power of human brain, it has the ability to learn new things, it has the ability to redo certain things. Speech is also part of it, it can be done. So, it is a myth and Absolutely. it is never too late. No. Okay. The second myth is that auditory verbal therapy only works for a small group of children. Again, I would say it's a myth. Auditory verbal therapy comes under early intervention program. Okay. However, even if the child is starting at 3+, there are 33 strategies in AVT where in certain kind of population जो बच्चे देर से काम जिनके साथ शुरू हो रहा है, उन कुछ स्ट्रैटेजीज को हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सुनने पे ही काम करना है. अगर बच्चे को स्पीच पे लाना है तो सुनने की जो पावर है, द लिसनिंग एबिलिटी हैज़ टू डेवलप. राइट. कोई उसका शॉर्टकट नहीं है. तो 5 साल तक 0 to 5 तक हम AVT के प्रिंसिपल्स को, AVT की स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं. ओके. ओके. थर्ड स्टेटमेंट, myth or fact, using sign language interferes with speech development even after cochlear implant is fitted onto the child. अगेन इट्स अ मिथ, क्योंकि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो चुका है सुनने के लिए, बच्चे के अंदर स्पीच आ चुकी है और उसके बाद अगर वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल हियरिंग के लोग भी तो साइन यूज़ करते हैं. अगर दूर है तो मैं बोलूँगी ना, वेट वेट, राइट, आई एम कमिंग. हाँ. So as a human being, we all use sign language. Right. So अगर ये बच्चा भी sign language use कर रहा है तो कोई problem नहीं है. There is no problem. It is okay to use. और sometimes difficult environmental situations में तो बच्चे lip reading भी करते हैं. Right. These are all aids to help a child to communicate. Ultimate goal क्या है? Good communication. Right. मेरी बात आपको समझ आनी चाहिए, आपकी बात मुझे समझ आनी चाहिए. दैट्स ऑल. तो जब आपके पास बच्चे आ रहे हैं थेरेपी के लिए, तो आप क्या एनकरेज करते हो कि थेरेपी के साथ साथ वो लिप रीडिंग पे भी फोकस करें या साइन लैंग्वेज पे भी फोकस करें, या आप डिवाइड करके? नहीं, जब थेरेपी के लिए आ रहे हैं तो प्योर हम ऑडिटरी ब्रेन को डेवलप करने के लिए ही थेरेपी के लिए आ रहे हैं ना. राइट. साइन लैंग्वेज तो उनको ऑलरेडी आती है, लिप रीडिंग वो ऑलरेडी कर सकते हैं. Right. उसके लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाती है. ट्रेनिंग तो वो ऑडिटरी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं. राइट. तो हम सेशन में बैठ के ये चीज़ें नहीं सिखा रहे, बट इन जनरल आपने जैसे पूछा, अगर वो फिर भी साइन कर रहे हैं, इट इज़ ओके. Okay. As long as they are developing their auditory brain and spoken language communication, signing is fine. Signing is fine. So that's the verdict. Signing is fine. Yes. Okay. Another statement for you. Mainstream schools aren't really built for children with disabilities.
To some extent, I would say no. To some extent, I would say yes Ooh, also. so both myth and fact. Yes, because it's a both ways. If I look back 20 years back, तब तक हमारे मेन स्कूल्स में और हमारी सोसाइटी में इतना अवेयरनेस नहीं था. अब धीरे धीरे अवेयरनेस आया है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने बहुत सपोर्ट किया है, इंक्लूजन पे किया है काम. राइट. तो उस अवेयरनेस की वजह से सब स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स हैं. दे मे नॉट बी दैट वेल इक्विप्ड, बट दे आर नॉट कि एट दैट लेवल जहाँ अवेयरनेस ना हो. राइट. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट बोलना चाहूँगी कि पेरेंट अपने बच्चे में इतनी स्किल डेवलप करे कि वो खुद खड़ा होके बच्चा अपनी नीड्स को बता सके. राइट. कि मेरे को सुनने में दिक्कत हो रही है, मुझे आगे बैठा दीजिए. मुझे इतने नॉइस में मेरे से ये इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, मैम कैन यू प्लीज रिपीट. राइट. दीज आर कॉल्ड सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स. तो हमें हमारे बच्चों में ये स्किल्स को डेवलप करना है कि कल को अपनी नीड्स को वो खुद जाकर कम्युनिकेट कर सके. हर जगह पेरेंट नहीं जा सकता. या. तो उतना पोटेंशियल हमें हमारे बच्चों में भी बनाना पड़ेगा. So is this part of your therapy procedure? Absolutely. Okay. From the very day one, we start telling the parent कि इनमें self advocacy skills built up होनी चाहिए. And we do it in a very subtle way. हम हर सेशन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स पेरेंट्स को बताते रहते हैं कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें भी साथ साथ डेवलप करिए. Right. And I think that's a very good emphasis is you put on early intervention in combination with self-advocacy skills, because from what I remember 25 years ago, 20 years ago, this was not a very popular method of treatment. The focus was more on, oh my God, we should just get the child to speak something. Yes. So no one ever thought about self-advocacy and early Yes. intervention. So it's very nice to see the paradigm shift now. Yes. Okay, last statement. Societies like India still struggle with awareness around disabilities, including hearing impairment, neurodivergent disabilities, motor disabilities in general. Societies like India still struggle with awareness about it. Myth or fact? I would say now it is a myth because अभी तो बहुत अवेयरनेस आ गया है. Right. आप नेट खोलिए, टाइप एनीथिंग, you will get lot of videos on certain subjects, lot of articles. बहुत सारा अवेयरनेस है. हाँ, ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है. Right. समझने की ज़रूरत पड़ती है. और अभी पहले से things are better. Again, as I said, national education policy में changes लाने से अवेयरनेस स्कूल्स में भी है, पेरेंट्स में भी है, और there is lot of government programs now. एडिप स्कीम में बच्चों को बहुत सारे कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी फ्री में मिले हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं. Right. जहां बच्चों को बहुत सारा फ्री एड्स और अप्लायंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं. यस, आई वुडंट से कि ये बहुत सफिशिएंट है. देयर इज अ नीड ऑफ मोर अवेयरनेस, स्पेशली अर्ली डायग्नोसिस पे. जैसे मैंने बोला, हर दिन कीमती है. Right. तो जितनी जल्दी बच्चे में डायग्नोसिस आप कर पाओगे तभी ये सारा प्रोसेस शुरू होगा. Right. सो उसमें अभी मुझे कमी लगती है. Okay. अवेयरनेस इन डायग्नोसिंग चिल्ड्रन एज अर्ली एज पॉसिबल. Okay. So you heard it here first. Early intervention is the way to go. यस. So this was the end of our myths or facts. So these are very common questions and myths that people still have to date about disabilities, hearing loss, therapy, parenting. So thank you for busting the myths for our audience. And now I want to move you into you're already in the hot seat. So let's move into the rapid fire session. Okay. So I'm going to ask you some questions and you have to answer as quick as possible. Sure. And we're going to keep it on a lighter note so we can have fun with it. You can have fun with it. Okay. So what is the most rewarding part of your day as a therapist? When I see my parent happy and motivated, I think Not the child, the parent. क्योंकि
मैंने 45 मिनट्स काम किया, मेरे पेरेंट को 23 आवर्स 15 मिनट्स काम करना है। अगर वो गोल मेरा ट्रांसफर हो गया उनमें और वो मोटिवेट हो गए तो बच्चा तो आराम से कर जाएगा। Very nice. How sweet. Usually you hear people are like, oh, the child, but it's very nice for you to support the parent, being a parent yourself as Yes. well. Okay, the second rapid fire question is that one quality every parent of a disabled child should remember throughout their journey. There is no better teacher or a therapist than a parent. Right. हर पेरेंट में पोटेंशियल होता है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई थेरेपिस्ट उसके बच्चे को ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं दे सकता। थेरेपिस्ट एक अच्छा गाइड और कोच हो सकता है, Right. लेकिन अच्छा थेरेपिस्ट टीचर सिर्फ पेरेंट ही हो Parent सकता बन सकता है। तो उनको ये बात याद रखनी है। चाहिए। Yes. Third question, a moment in your career that still gives you goosebumps to this date. There are many special moments. जैसे I'm पेरेंट आया कि मेरा बच्चा ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा और हमने अपनी जरा सी स्ट्रैटेजी यूज करी और वो बच्चा बोल बोलने पड़ता है। Hmm. सो इट्स लाइक अ स्पार्कल कि पेरेंट्स की आइज में जैसे वो स्पार्क आ जाता है ना, अरे ये तो हो गया, ये तो बोल लिया, ये तो ऐसे हो गया। These are those special moments. So you get goosebumps every time this happens, no Yes, matter how many I years. am thankful that every parent motivates me, every family motivates. They have given meaning to my life. Right, they are your motivation. Yes. If you were not in this field, what would you have been doing today, Dr. Ritu Nakra? I am a postgraduate from NIFT Delhi, तो probably कुछ leather designing में कुछ कर रही होती, but I don't miss that. I enjoy every day with my children. So I think you should design something for our children, some I design- nice leather accessories you should design. I design story books for them. So हमने बहुत सारी कॉकलियर इम्प्लांटी बच्चों के कैरेक्टर्स को लेके ही बहुत सारी स्टोरी बुक्स बनाई हैं। और उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम लिटरेचर देखो या मेन स्ट्रीम मूवीज़, सोशल मीडिया, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। मुझे Correct. लगता है मेरे जैसे लोग दिखते नहीं है बुक्स में, स्क्रीन पे। Yes. सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। Yes. So we have lot of story books जिसमें कि मेन कैरेक्टर ही एक कॉकलियर इम्प्लांटी है और जब बच्चा वो बुक को देखता है, अरे द फर्स्ट थिंग दे डू इज, अरे ये तो मैचिंग है, दे कैन कोरिलेट। हाउ स्वीट। So designing because of that background, it helps me to make new resources. Right. What do you wish parents understood in the journey about therapy? The one thing that they understood much earlier on, probably it would have saved so much time. Every day counts, as you said, save time. हर दिन कीमती है, ये समय वापस नहीं आने वाला। वापस नहीं आया। रिश्तेदार, शादी, ब्याह, आना जाना, ये पूरी लाइफ चलेगा, घर के काम काज, बच्चे का टाइम वापस नहीं आएगा। Right. So that is important for them to keep in mind. Right. And you've been in your field for a long time, and Hear Me Speak is also completing 10 years this month, so it is a very big milestone for you. Thank you. What is one experience that you have, or what is one strategy that you use when you've worked with a lot of professionals? So when professionals are not aligned about a particular child or a case, so what is one strategy that you've used to solve this issue? I don't become smart in front of other professionals. I seek help. I seek guidance from them. Right. I don't say कि मेरे पास ये बच्चा है, मैं ये कर रही हूँ, नहीं, ये केस है, how can you guide me, what best can be done? So जब आप अपने आप को सबके साथ लेके चलते हो तो वो resistance कभी पैदा नहीं होता। Right. So teamwork and collaboration with other professionals is very important. Right. So that is one key I would say has helped me. So a cliche statement would be teamwork makes the dream work. Absolutely. Perfect. So thank you so much for flipping the seats today and giving us a lot of very useful information for both our audience at home and the parents that come visit you, or people like me who watch it, or professionals who look to you for guidance. Thank you so much. This podcast is not only limited to hearing impaired children, but children with disabilities of all kinds.
So thank you for the inclusivity that you bring to this podcast. What was your favorite moment from this podcast today? I enjoyed thoroughly, and thank you for making building up such good questions. Ki I could open my heart out and talk about the importance of early intervention, awareness, working with your AVT. child, Yeah. AVT, and knowing that parent is the core for any child's journey. So, thank you. Thank you.